Okay, let me start. Fine. So today I'll be taking class on organic chemistry. Okay, I hope you have some idea. सर थोड़ा लाउड से थोड़ा जोर से बोलिएगा. ठीक है. ऑडियो का प्रॉब्लम होगा तो बता देना. ठीक है. तो आज हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन खुद को इंट्रोड्यूस करने वाला है. ठीक है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो तुम लोग आई गेस यू हैव हर्ड अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? So before starting the organic chemistry, let us know what an organic compound. What is an organic compound? Okay. अभी तो क्लियर आ रहा है? हेलो. हाँ सर अभी ठीक है. ठीक है ना? तो ठीक है, हम शुरू करते हैं. तो we should first basically we should understand what is organic compound. Okay. So organic, the very word organic means living या alive. Okay, living or alive. ठीक है. तो organic compounds means what? Any compound that is associated with living things. Okay, or I can say the compound that are obtained from living things. Living things क्या होता है? Plants and animals. So any compounds that are obtained from plants or animals, okay, are called organic compounds. Okay, example हो गया तुम्हारा ग्लूकोज, साइट्रिक एसिड, यूरिया. These are the organic compounds. Okay, ये तो हो गया definition. और ये definition means this definition was used around 1800s. Okay, 1800s. We don't use it anymore. ठीक है. Why is that so? You see, the so-called compound glucose, citric acid, or urea. Okay, this nowadays we can easily prepare them in laboratory. ठीक है. साइट्रिक एसिड चाहिए, लैब में जाएगा, एक रिएक्शन करेगा, हमको साइट्रिक एसिड मिल जाएगा. आई डोंट नीड टू एक्सट्रैक्ट देम और ऑब्टेन देम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो this definition is no longer used. Okay, so we use another definition of organic chemistry. Okay, then so all the organic compounds that we know, means all the organic compounds have carbon. Okay, carbon atom and hydrogen. Okay, all the organic compounds that we know consist of this carbon atom. Predominantly it has carbon atom, and it is always associated with other carbon atoms or hydrogen atoms. Okay, so you see, all the organic compounds contains carbon as essential constituent and is always bonded with hydrogen atom. Okay, other atoms are also there: oxygen, nitrogen, phosphorus. Okay, X here I am referring to halogen atoms. Okay, chlorine, fluorine, etc. But they are present in comparatively less amount. Okay, so what I am trying to say here is that the organic compound, जो भी हम लोग organic compounds जानते हैं, ठीक है, सब में कार्बन होता ही होता है. It always contain carbon and hydrogen. Okay, दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन. ठीक है, बट दे आर कंपैरेटिवली लेस. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फाइंडिंग we have defined organic compound as, but you see, organic compounds are
हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये जो ऊपर का फाइंडिंग्स है, अकॉर्डिंग on the basis of that we have described organic compound as hydrocarbon and their derivatives. Okay, done. So now the question is, what is hydrocarbon? Hydrocarbon क्या है? ठीक है, by the very name we can say that we have some idea that hydrocarbon, okay, compounds that contain carbon and hydrogen only. Okay, compounds that contain carbon and hydrogen only, such compounds are known as what? Hydrocarbon. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा मीथेन, ओके, CH4, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा, C एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ओके, CH4, इथेन C2H6, ओके, 2 कार्बन्स, ओके, 6 हाइड्रोजन्स, बेंजीन। ठीक है, तो दिस आर व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया? तो नाउ we'll move to our definition. Okay, what does our definition say? That organic compounds are what? Hydrocarbons, okay, and their derivatives. Okay, so by this definition, ये methane, ethane, benzene, these are all what? All hydrocarbons, means they are organic compounds. Okay, ठीक है। तो this here's the methane. Oh, notice that definition में हम क्या बोल रहा था? Organic compounds are hydrocarbon and their derivatives. ठीक है, तो derivative, by that their derivative, what I mean, you see, this here is what? A hydrocarbon named methane, CH4. Okay, if I replace one hydrogen, okay, hydrogen by chlorine atom, ठीक है, say we removed one hydrogen and we have added one chlorine, okay, then we'll have this compound, chloromethane. Okay, this chloromethane is a derivative of what? Methane, right? It is a derivative of the methane, hydrocarbon named methane. Okay, so this chloromethane is also an organic compound. ठीक है, take another example, ethane. Okay, C2H6, this is a hydrocarbon. Now if we replace one hydrogen, okay, one hydrogen by say OH, hydroxide ion, we removed one hydrogen and then added OH. Okay, what we'll get? We'll get ethanol. Okay, so this ethanol, okay, is a derivative of the hydrocarbon ethane, right? And hence ethanol is also a organic compound. ठीक है, तो what is an organic compound? Organic compound are hydrocarbons and their derivative. ठीक है, इतना से समझ में आ गया? फाइन, तो फिर आगे ये ला, ठीक है, तो the branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbon and their derivative is known as what?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है. In organic chemistry, what we do, we study this hydrocarbon and their derivatives. Okay, so this is organic chemistry. ठीक है. अब सवाल आता है ये ला, इज एमोनिया ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक? ये क्या है, मतलब ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? सिर्फ एमोनिया, ठीक है. एमोनिया इज नॉट ए हाइड्रोकार्बन, ठीक है. हाइड्रोकार्बन होने के लिए तुम्हारे पास क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन रहना जरूरी है. कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, बट इन एमोनिया देयर इज, इट्स नॉट ए हाइड्रोकार्बन. ओके, नॉर इज इट्स डिराइवेटिव. तो दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है. सिमिलरली ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स, मैं बता रहा हूँ इसका ये क्या है. दिस आर ऑल्सो नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए क्या होना होगा, इट मस्ट बी अ हाइड्रोकार्बन और इट्स डिराइवेटिव, जैसा कि इसमें बताया था, इथानॉल या क्लोरोमीथेन, ये सब, ठीक है. ओके, आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्योर कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है. डायमंड, ग्रेफाइट, ओके, ये सब क्या है, दिस आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. सर कार्बाइड्स मतलब? हाँ, बता रहा है, ठीक है. दिस आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बाइड्स क्या है, तुम्हारा ये सॉल्ट है, जैसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, ठीक है. जैसा करके होता है ना तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड, इस टाइप का सॉल्ट जैसा होता है, ये इस टाइप का तुम्हारा सॉल्ट है. सो ये तुम्हारा क्या इस टाइप का, ये भले ही इट स्टिल कंटेन्स कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, बट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक. ये जैसा ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसको तुम अगर वाटर में दे देगा, ठीक है, ये तुमको क्या इथिन दे देगा, इथिन. तो इथिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बट ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये तुम्हारा ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है. तो इस टाइप का मॉलिक्यूल को भी हम लोग कहता है वो ऑर्गेनिक में नहीं स्टडी करता है, ठीक है, ठीक है, डन. तो आता है एक नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं हम लोग. ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये तुम्हारा वाइटल फोर्स थ्योरी. मतलब सुन के हंसी आता है इस पे, मतलब कि सच थ्योरी आल्सो एग्जिस्टेड इन साइंस, ठीक है. वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब इट वाज प्रपोज्ड बाय जैकब बर्जिलस, ठीक है, स्वीडिश केमिस्ट. तो इसका इसमें क्या था, मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी में बट इट वाज बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी, ठीक है, वो लोग लेबोरेटरी में नहीं बन सकता. दे आर क्रिएटेड बाय लिविंग थिंग्स. हाँ, दे आर क्रिएटेड इनसाइड ए लिविंग थिंग बाय सम वाइटल फोर्स. मतलब लिविंग बॉडी के अंदर में जैसे कि कोई एक अननोन मिस्टीरियस फोर्स है, उसको मतलब वो लोग वाइटल फोर्स नाम दिया था. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे आर कैन ओनली बी क्रिएटेड इनसाइड ए लिविंग बॉडी. तो इस टाइप का मतलब एक थ्योरी था, ठीक है, जो कि सच्ची में कचरा है. तो समथिंग लाइक दिस आल्सो एग्जिस्टेड इन साइंस, ठीक है. तो ऐसा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, दे आर क्रिएटेड इनसाइड living organism, okay, by some mysterious force called vital force, ठीक है. तो ऐसा था. but synthesis of urea by F.H. Wohler in 1828, ठीक है. 1828 में क्या किया था, F.H. Wohler ने यूरिया सिंथेसाइज किया था लैब में. यूरिया बैक देन
was a well known organic compound. हम लोग जानते हैं कि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है. What he did, he took ammonium cyanate NH4CNO, ठीक है, इसको हीट कर दो. So this was basically क्या इनऑर्गेनिक. अमोनियम में प्लस था, में माइनस था, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड. व्हेन यू हीटेड देम यू गॉट दिस यूरिया. सो ये सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लेबोरेटरी फॉलोड बाय तुम्हारा सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, बाय कोल्बे. ठीक है, ये एसिटिक एसिड बाय कोल्बे. और फिर क्या था, मीथेन बाय बर्थेलॉग. मींस as the time went on, we were able to synthesize more and more organic compounds in laboratory. तो by that हम लोगों ने क्या किया, ये वाइटल फोर्स थ्योरी को निकाल दिया, ठीक है. ये अभी यूज नहीं होता, बट ऐसा थ्योरी भी हुआ करता था कभी साइंस में, ठीक है. तो ये हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी. तो इससे पहले ये लास्ट स्टार्ट करूं मैं, पानी पी लेते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, राइट. तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, पहले क्या होता है, तो बाय नाउ यू नो दैट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम लोग जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जानते हैं, सब में तुम्हारा कार्बन होता ही होता है. इट कंटेन्स कार्बन, ठीक है, इन और हाइड्रोजन रहता ही है. तो बिफोर वी गो फर्दर इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम लोग को थोड़ा सा क्या बोलता है, कार्बन का दो प्रॉपर्टीज जानना मतलब थोड़ा सा जरूरी है, मतलब जानना चाहिए, ठीक है. उनमें से एक प्रॉपर्टी है तुम्हारा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, और दूसरा है तुम्हारा कैटिनेशन, ठीक है. तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब, इसका मतलब ही ये है कि तुम्हारा कार्बन जो है इट ऑलवेज फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स. और इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है. टेट्रावैलेंसी मतलब क्या, कार्बन क्या ऑलवेज फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ना 4 से कम बनाएगा ना 4 से ज्यादा बनाएगा, इट विल ऑलवेज फॉर्म दिस 4 बॉन्ड्स, ठीक है. सो ये टेट्रावैलेंसी को समझने के लिए you should know little bit about the electronic configuration of carbon atom. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. एक सेकेंड, एक बात बताना, वो तुम्हारा क्या बोलता है, मतलब जो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑडियो और जो ये तुम्हारा वीडियो, ये सिंक्रोनाइज कर रहा है क्या एक साथ में, मतलब ना थोड़ा आगे पीछे हो रहा है? नो सर, ठीक ही है. ठीक है ना, मतलब जैसे बात कर रहा है वैसे ही ऑडियो के साथ साथ वीडियो जा रहा है ना. हाँ. सही है. तो एक और दूसरा बात, तुमको क्या बोलता है ये सब एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, इनका बारे में सुना है, इनका नॉलेज है तुमको? नहीं सर, क्लास 10 में नहीं था ऐसा. हाँ 10 में नहीं था, 11th में मिलेगा तुमको चैप्टर 2 पे, ठीक है. हाँ. इसमें तुमको एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा. तो इसी बात में हम थोड़ा बता देता है, जैसे एटॉम का, इसका अभी इतना तो पता है कि कार्बन का तुम्हारा एटॉमिक नंबर है 6 और हाँ. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. ये कुछ ऐसा है, बीच में न्यूक्लियस रहेगा, पहला शेल में तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और फिर नेक्स्ट शेल जो है उसमें तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है. ये इसका आइडिया है ना. हाँ. तो अभी जैसे तुमको 12th में एक दूसरा पिक्चर मिलेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 नहीं लिख के हम लोग ऐसा लिखने वाले हैं, 1s2 2s2 2p2, ठीक है. इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 2, ठीक है. ऐसा ये हम समझा देगा बाद में, तो इसमें ये मतलब बहुत जरूरी चीज है.
इसी पे ही मतलब बहुत सारा चीज बेस करता है, ठीक है। बट टेट्रावैलेंसी समझाने के लिए हम आज इसी से काम चला देगा, नेक्स्ट बाद में कभी डिस्कस करेगा इसको, ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट होता है तुम्हारा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4, ठीक है। दिस आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग को पता है ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल, ठीक है। All the atom tries to make 8 electrons in their valence shell. So carbon also tries to do the same, 4. For doing that, what it has to do, it has to accept 4 electrons. 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना पड़ेगा. It cannot do that, ठीक है। नेक्स्ट वो एक दूसरा काम कर सकता है, it can release 4 electron. 4 electron. That is also hard to do. So carbon क्या, it can neither release the 4 electron nor it can accept 4 electron. So what it does, इट शेयर्स, इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर देता है, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं कर सकता है। तो कार्बन के पास क्या 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दिस दे विल शेयर विद अदर कार्बन एटम या अदर एटम, ठीक है। जैसे पकड़ लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल शेयर विद देम। तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ गया, तो यू सी दे कार्बन व्हाट इट डज, इट शेयर्स दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम। तो एट द एंड क्या हो जाता है, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, 2 4, ठीक है, 6 8। तो कार्बन एटम के पास तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऐसा करके 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अपना ऑक्टेट फिलअप करने के लिए व्हाट इट डज, इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन, राइट, इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। दैट मींस कार्बन एटम जो है वो हमेशा तुम्हारा वैलेंसी ऑफ 4 दिखाता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, डन। तो नेक्स्ट आता है तुम्हारा कैटिनेशन। कैटिनेशन के बारे में पहले सुना है? हाँ सर, लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। हाँ, सिर्फ लॉन्ग चेन नहीं फॉर्म करता है, चेन के साथ रिंग भी फॉर्म करता है, ठीक है। हाँ। तो वो दिक्कत नहीं होगा, तुमको समझ में आ जाएगा। अरे यार हम तो इसे लिख दिया। तो देखो, कार्बन एटम हैज अ टेंडेंसी टू लिंक टू वन अनदर एटम, ठीक है। एक कार्बन एटम इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, ओके, थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। ये याद रखना, ठीक है। हमेशा द कार्बन एटम्स ऑलवेज फॉर्म व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन फॉर्म करता ही रहेगा, जैसे कि इसमें कार्बन 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 एक तरीके से मतलब जुड़ा हुआ ही है। तो दिस फॉर्म्स कैन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म सच लॉन्ग चेन और रिंग्स, जैसा ऐसा ये वाला, ठीक है, सी नंबर्स में जो दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, कैटिनेशन। जो लॉन्ग चेन है दे कैन आल्सो बी ब्रांच, ठीक है। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस तरीके से एक एक करके जाते ही रहेगा। एंड इट कैन आल्सो फॉर्म, मतलब जब तक टेट्रावैलेंसी फॉर्म नहीं होता, इट कैन कंटिन्यू टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग एज इट विशेस, ओके। सो ये प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन, इट इज व्हाट, यूनिक टू कार्बन एटम, ठीक है। तो दिस इज द कैटिनेशन, तो तुमको ये बात पता है। तो नेक्स्ट क्या है, बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, वेरी लार्ज। कैटिनेशन के लिए एक के बाद एक जुड़ता ही रहता है, तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज नंबर, अबाउट 60 lakhs ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन, ठीक है। 60 lakhs प्लस तो हम लोग जानते ही हैं, और मोर देन 1000 न्यू कंपाउंड्स आर एडेड एवरी ईयर, ठीक है। ये सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन है सिर्फ तुम्हारा कैटिनेशन के लिए। कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, थोड़ा बहुत आइसोमरिज्म भी आता है, बट मतलब ये सारा फैक्टर्स के लिए क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आर वेरी लार्ज इन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक दूसरा क्वेश्चन, तुमको वो पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड क्या है? हाँ सर, कोवेलेंट बॉन्ड में जिसमें शेयर करते इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही, आयनिक बॉन्ड जिसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बनता है, राइट। हाँ हाँ तो ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसका और 3 टाइप है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसा करके फॉर्म होता है, आर फॉर्म बाय शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जैसे कि वो हम मिथेन में दिखाया था लास्ट टाइम, कार्बन का पास ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा मीथेन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप, ये जो 2 जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस विल फॉर्म 1 बॉन्ड। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 1 बॉन्ड। तो जहां जहां पे तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट से समझा, एक क्रॉस से समझा, तो जहां जहां एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां वहां एक एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ये सब। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका नाम, एक दूसरा बात इंफॉर्मेशन याद रखना, ये सारा सिंगल, जितना भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सबका सबका नाम है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये इथेन मॉलिक्यूल है, ये इथेन है C2H6। तो इसमें तुम्हारा कितना सिग्मा बॉन्ड है, ये देखो, 1 2 3 4, जितना भी मतलब सिंगल बॉन्ड है वो सारा तुम्हारा क्या, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें तुम्हारा टोटल क्या बोलता है, 3 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स है, 7 सिग्मा बॉन्ड्स। एक सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन, और तुम्हारा 6 है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें टोटल हो गया तुम्हारा 7 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स। और दूसरा आता है हम लोग का डबल बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 pairs of electron when shared between 2 atoms, कार्बन एटम्स, तब, या फिर कार्बन एंड अनदर एटम, हेटेरो एटम, तब जाके तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। जैसे कि इथीन, इसमें दिख रहा है, देयर आर व्हाट, 2 pairs of electron, 2 pairs of electron के वजह से क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड को समझाते हैं हम लोग 2 डैश से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या याद रखना है, देखो, डबल बॉन्ड में हमेशा जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड हमेशा जो है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और एक बॉन्ड जो है तुम्हारा हमेशा पाई बॉन्ड होगा। कभी दो, भले इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, दोनों सिग्मा बॉन्ड नहीं है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा तुम्हारा पाई बॉन्ड है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। तो इथिन में देखो, इथिन में तुम्हारा क्या बोलता है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। कार्बन कार्बन का बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन का बीच में तुम्हारा 4 है। तो इसमें टोटल कितना, 5 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड्स जो पाई बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड, दिस कैन आल्सो बी फॉर्म बिटवीन कार्बन एटम एंड ए डिफरेंट एटम। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा एसीटोन पकड़ लो, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये देखो, इसमें तुम्हारा 2 क्या डबल बॉन्ड आ गया एसीटोन में, कार्बन और हाइड्रोजन का बीच में, राइट। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये याद रखना है। डन। तो नेक्स्ट आता है हम लोग का तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में सेम वही है,
कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन कार्बन एटम और कार्बन एटम एंड अनदर एटम, ठीक है। एग्जांपल हो गया इथाइन। तो कार्बन कार्बन का बीच में तुम्हारा 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 3, तो दिस आर व्हाट नोन एज ट्रिपल बॉन्ड, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3 डैश से, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक बात दूसरा याद रखना, वन तो एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा ही, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। फिलहाल तुम इसको याद रखो, ये हम बाद में बताएगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये तुमको कहता है केमिकल बॉन्ड में, बॉन्डिंग में तुमको चीज तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम ही लगे बाद में समझा देगा, बट एज ऑफ नाउ जब भी तुमको क्या मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा जैसे कि ये सब, तो 1 विल बी सिग्मा बॉन्ड एंड 1 विल बी पाई बॉन्ड। इथिन में तुम्हारा इसमें कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और तुम्हारा 2 पाई बॉन्ड है। इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, कार्बन कार्बन का बीच में 1, कार्बन हाइड्रोजन का बीच में तुम्हारा 2, तो इसमें टोटल तुम्हारा कितना है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और कितना, 2 पाई बॉन्ड है। इतना से समझ में आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में कोई क्वेश्चन है क्या, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? सर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला लास्ट वाला समझा दीजिए फिर से। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, देखो तुम्हारा फिर से, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, एक नहीं, तुम्हारा क्या होता है, जैसे कार्बन कार्बन, इसके बीच में 1 पेयर, फिर 2 पेयर, 3 पेयर, जब ऐसा करके 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और इसमें से क्या होता है, तुम्हारा एक जो है, हाँ तुम इतना में नहीं रख सकता, कार्बन याद ध्यान रखना है ना, वो हमेशा क्या है, तुम्हारा टेट्रावेलेंट है, उसका वैलेंसी 4 होना ही होगा। ये कार्बन ऑलरेडी 1 2 3 फॉर्म किया हुआ, और एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, इसमें 1 2 3 4, इस बारे में तो और बाद में बताएगा, बट ये देख लो, जो ये तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से क्या होगा, एक तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड होगा और तुम्हारा 2 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऐसा है, कार्बन और दूसरा एटम का बीच में भी हो सकता है, कार्बन और जैसे पकड़ लो नाइट्रोजन, तो इसमें भी तुम्हारा क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसमें भी क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड ये नाम है, ठीक है, और ये इसको तुमको समझ में आएगा बाद में, जैसे कि बाद में हम लोग तो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे, तब ये समझ में आएगा कि ये सिग्मा बॉन्ड क्यों है, ये पाई बॉन्ड क्यों है, ठीक है, और वो क्या क्या चीज़ है, तो हम लोग को ये थोड़ा पता पड़ जाएगा। तो इतना तक ठीक है, तो हम लोग तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम, ठीक है, क्वेश्चंस आता है ये वाला। तो ये 4 पॉइंट्स जो हम लिखा है, ये 4 वी डिस्क्राइब देम इन वन ऑफ दिस 4 वेज, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर, ये तो तुमको पता पड़ ही गया, वो लास्ट इसमें जो दिखाया था हम लोग, ये वाला, ठीक है। इसमें जैसे कि कहता है तुम्हारा बिटवीन द कार्बन एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्ड्स आर शोन बाय डॉट, तो ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है, तुम्हारा लुईस स्ट्रक्चर, हाँ, या डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वेज, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना आता है, राइट। तो नेक्स्ट आ गया तुम्हारा डैश्ड स्ट्रक्चर, डैश्ड स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर।
तो डैश स्ट्रक्चर क्या होता है तुम्हारा, जैसे पकड़ लो मीथेन CH4, ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का फार्मूला, इसको हम लोग कॉन्डेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये समझ में बाद में पता पड़ेगा। तो डैश स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑल द एटम्स आर ड्रॉन, ओके, एंड ऑल द बॉन्ड्स आर ड्रॉन। तो बिटवीन द एटम्स जो लिंक है, जो बॉन्ड है, उसको दे आर ड्रॉन इन दिस वे। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है हम लोग इसको बोलते हैं तुम्हारा डैश स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो मतलब जो कि कंप्लीट है वो बताता है। इथेन पकड़ लो C2H6, ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑल द कार्बन, ऑल द एटम्स विल बी शोन, ओके, एंड how they are linked to each other, that one also will be shown, ठीक है। so all of them are linked by single bond, तो वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डैश से, ठीक है। तो ये इनको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा, तो ये जो है ये सब हम ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग तुम्हारा डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर या फिर तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल ले लो इथिन C2H4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड H2, ठीक है। तो इस तरह का इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा डैश स्ट्रक्चर। एक दूसरा एग्जांपल ले लो C6H6, तो सारा कार्बन को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एंड हाउ दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हुआ तो ऐसा सिंगल, डबल बॉन्ड हुआ तो ऐसा डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये जो है तुम्हारा, दिस इज द डैश स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है, डैश स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हो गया। तो तुम्हारा नेक्स्ट है कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है तुम्हारा, इन्हीं को बोलते हैं, जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का CH4 C2H4 C6H6, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है, रिवर्स होता है, कि जैसे पकड़ लो ये हो गया हम लोग का मॉलिक्यूल, तो इनका बीच में जो अननेसेसरी बॉन्ड्स मतलब है, जो कि मतलब ये बॉन्ड्स दे आर ओमिटेड, ये बॉन्ड्स हम लोग दिखाते नहीं दिखा के हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे इसमें क्या है, एक कार्बन है तो लिख दिया C, ठीक है, C, और इसमें क्या 3 हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड नहीं दिखाना है बीच में, तो लिख देंगे। तो नेक्स्ट कार्बन के बाद क्या, दूसरा कार्बन है, बॉन्ड नहीं दिखाना है, ठीक है, इंस्टेड क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कार्बन दे देंगे, और इसके साथ में क्या, और 3 हाइड्रोजन है, तो इन तीनों का बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, ये भी नहीं दिखाना है, डायरेक्ट CH3 CH3 ये हो गया तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है, या हाँ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इस तरीके से हम लोग उसको क्या होता है, डिफाइन करते हैं, मतलब जो बॉन्ड्स है उसमें बॉन्ड्स नहीं दिखाते, डायरेक्ट जो एंटिटी है वो डायरेक्ट फॉर्म लिख देते हैं, वो तुम्हारा फार्मूला ही हो गया बेसिकली, ठीक है। दूसरा पकड़ लो मिथानॉल, मैं दिखाता हूँ दूसरा वाला, मिथानॉल, ठीक है। मिथानॉल में तुम्हारा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा है, C C C C H H H O H, ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या होगा, हर एक एटॉम का साथ में तुमको क्या बोलते हैं, ये बॉन्ड्स शो करना पड़ेगा, दोनों एटम्स का बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तुमको वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्या है, तुम ये जो हेटेरो एटम है इसमें तुम्हारा OH अलग अलग क्यों लिखा है? अलग अलग कहाँ लिखा है तुम्हारा, OH जो है ऐसा होता है ना, OH तुम तो इसका एक बात कर साथ। रहे हैं। हाँ, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम क्या बोला, वो बॉन्ड दिखाना पड़ता है, O और H का बीच में क्या एक बॉन्ड है, ये वाला, ये हम लोग यूजुअली दिखाता नहीं है, समझे, ठीक है। जैसे होता है वाटर, ऐसा हो गया ना, तो वाटर से क्या होता है, तुम अगर H हटा दो सिर्फ,
ये हो गया हम लोग का H2O, राइट। तो इसमें से हम लोग क्या करने वाला है, ये H हटा देने वाला है, हटा दो, H बोल के हटा दो, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये चला गया, तो ये क्या हो गया OH, क्योंकि ये बॉन्ड हट गया, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ये है हम लोग का हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। अच्छा। ठीक है, जब हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएगा तब हम लोग ये कंप्लीट बॉन्ड दिखाएगा। ठीक है, बॉन्ड दिखाना है। और हेटेरो एटम में तुम्हारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो वो तुम्हारा मर्जी है, तुमको दिखाना है या नहीं दिखाना, वो तुम्हारा मर्जी है। तो ऑक्सीजन में ऐसे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट या फिर डैश स्ट्रक्चर ऑफ मिथानॉल, ये हो गया। ठीक है, तो इसका कंडेंस्ड जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा ऐसा आएगा कि हम लोग तब इस टाइम में बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कार्बन लिखा, कार्बन के साथ क्या है तुम्हारा 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, बीच का बॉन्ड नहीं दिखाना है, तो डायरेक्ट क्या हो गया तुम्हारा CH, नीचे 3 लिख दिया, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होता तो 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या, कार्बन, कार्बन के बाद क्या तुम्हारा ऑक्सीजन है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेगा, और जो H है H, बीच का जो बॉन्ड है नहीं दिखाना। तो ये जो हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये 3 समझ में आ गया। पहला तो वो लुईस हो गया, लुईस तो हम लोग को पता ही है कि दोनों का बीच में वो इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है, ऐसा ऐसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनका बीच में जब तुम बॉन्ड दिखाएगा तब वो हो जाएगा तुम्हारा डैश स्ट्रक्चर या फिर तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट बॉन्ड दिखाएंगे, जैसे इसमें, और डबल बॉन्ड हो गया तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, 3 लाइन। ठीक है, तो उस टाइप वो होता है हम लोग का डैश स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कंडेंस फार्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा फार्मूला कैसा रहेगा कंडेंस में। ठीक है, तो कंडेंस वाला में क्या कर सकता है तुम, दोनों का बीच का जो बॉन्ड है वो नहीं दिखाना है। ठीक है, हो गया। और एक दूसरा एग्जांपल पकड़ लो तुम्हारा, ये ला CH3 CH2 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 CH2। ठीक है, CH3, तो इसमें देखो टोटल, इसमें इसका तुमको तो अभी तक नोमेनक्लेचर भी नहीं पता, वो सिखाएगा मैं तुमको। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पता होगा 10 में मिला है। तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन वाला अगर हाइड्रोकार्बन है, 7 होने से क्या होता है, वो हेप्टेन होता है। ठीक है, हेप्टेन। तो ये हो गया तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, अगर इसको वो कंप्लीट फॉर्म में लिखना होता तो सारा कार्बन लिखता, और कार्बन का बीच में ऐसा करके वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखाता। ठीक है, इसको हम लोग और कंडेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो CH2 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 ये क्या सेम ही है, कितना 1 2 3 4 5, 5 है टोटल, तो कुछ इस तरीके से लिखेगा CH3 CH2, टोटल कितना है 5 है ना, तो 5 CH3, ये हो गया तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी समझाते हैं। सर CH3 भी तो 2 बार है, तो उसको भी लिख सकते हैं क्या? उसको 2 बार मतलब अगर पकड़ लो ऐसा होता, सपोज ये अलग अलग है ना, एक इस कोना पे एक इस कोना पे, तो इसलिए हम लोग अच्छा। इसमें CH3 2 नहीं लिखेंगे। बट अगर ऐसा होता, सपोज ये CH3 तो है, ये एक हाइड्रोजन के साथ में क्या कर देता है, यहाँ पे एक और CH3 जोड़ देता है हम। ठीक है, अगर ऐसा कर देता है, ठीक है, ऐसा अगर कर देता तो देख लो इसमें क्या होता है, एक कार्बन है, कार्बन के साथ हमारा कितना है 2 CH3 है, तो इसमें 2 लिखेगा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो इसमें 2 CH3 है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो कितना मिथाइल ग्रुप है, एक मिथिलीन ग्रुप है, 1 2 3 4 4 CH2 है, तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं
CH2 4 लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा CH3, तो ये हो गया तुम्हारा कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। हाँ ये हो गया। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये मतलब और बढ़िया है। बढ़िया मतलब क्या, मतलब हम लोग हमें मतलब आदमी लोग क्या होता है, हम लोग एक्चुअली नेचुरली क्या होता है, थोड़ा आलसी होता है, ठीक है। तो ये है, इसमें कंप्लीट बनाना पड़ रहा था, मीथेन सब दिखाना पड़ रहा था, अच्छा नहीं लगता, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो आदमी ने क्या कर लिया, ये कंडेंस निकाला, ठीक है। CH3 CH2 मतलब बीच का बॉन्ड नहीं दिखा के थोड़ा टाइम बचा लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करता है आदमी, मतलब इसका भी आदत पड़ गया, तो बोलता है कि नहीं होगा तो और छोटा करना पड़ेगा। तब इसमें क्या किया हम लोग, डायरेक्ट इस टाइप का मॉलिक्यूल को डायरेक्ट हम लोग ऐसा समझाते हैं कि बोले ये रहा, ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर, लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, ना तुम्हारा कार्बन हाइड्रोजन कुछ नहीं दिखाते, सीधा ये बॉन्ड लाइन से समझाते हैं, ठीक है। ये हम तुमको समझा रहे हैं कि ये कैसा होता है, बट पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो बॉन्ड लाइन में क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, समझ लो। तो इसको अगर हम लोग को कंप्लीट, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा कंडेंस्ड है, ठीक है, एक तरीके से ये हाइब्रिड है, कंडेंस और तुम्हारा बॉन्ड का बीच का, ठीक है, जो भी हो। तो इसको हम लोग कैसा करके लिखते थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जिगजैग में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिख के हम लोग थोड़ा ऐसे लिखते हैं, CH3 ऐसा, CH2 फिर से लिए, एक दिया, CH दिए, यहाँ पे CH3 CH2 H2। मतलब क्या है तुम्हारा, जो पहले ये पूरा सीधा लिख रहे थे ना हम लोग, वी आर राइटिंग देम स्ट्रेट, राइट। सो इंस्टेड क्या होगा, हर एक कार्बन पॉइंट में विल मेक ए जिगजैग, एक बार ऊपर ऐसा तुम्हारा जिगजैग पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो दिस विल गेट कन्वर्टेड टुवर्ड दिस। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन भी ओमिट कर देंगे, इंस्टेड ऑफ दिस ऑल विल मेक हियर दिस 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3, 3 नंबर पे तुम्हारा क्या एक मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3, ठीक है, ऐसा। तो यू सी इसमें क्या होता है तुम्हारा, इन एवरी पॉइंट, ओके, देयर इज 1 कार्बन एटम। डॉट बॉन्ड डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग ऐसा करके समझते हैं, वंस आई सी दिस, सो देयर आर व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 7 डॉट्स, मतलब क्या इसमें तुम्हारा देयर आर 7 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7, इतना से हम लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट तो हम लोग को पता ही है, सिंस अगर कुछ भी नहीं है और उसके बाद देयर इज नथिंग एल्स, तो हम लोग समझ लेंगे कि इसमें हाइड्रोजन है। वी नो, क्या हम लोग को पता है, कार्बन इज व्हाट टेट्रावैलेंट, so it will always form what 4 covalent bonds. So this carbon, if you see, this is already bonded to 1 and 2 carbon atoms, तो डेफिनेटली 2 वैलेंसी हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन आने से तुम्हारा एक टेट्रावैलेंसी हो जाएगा। सेम इसमें H2 H3 H H2 H3, समझा। बॉन्ड लाइन मतलब होता है तुम्हारा इस तरीके का, वी ओमिट all the मतलब carbon and hydrogen, all of them we omit and instead we'll just write them in zigzag, मतलब जो है ना बॉन्ड स्ट्रक्चर में बनाते हैं। तो हर एक पॉइंट जो है स्टार्टिंग, हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि दिस इज ए कार्बन एटम, विल नो, ओके। और अकॉर्डिंगली वी नो
टेट्रावेलेंट है तो इतना इतना हाइड्रोजन आएगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग दे देंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आइडिया है? 4 है, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन के लिए हम लोग ऐसा करके देंगे, 1, ये जो स्टार्ट होगा ये एक नंबर कार्बन होगा और समझाएगा इसको 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। तो इसको पता है ये क्या तुम्हारा ब्यूटेन है, दिस इज व्हाट ब्यूटेन एंड दिस हियर is the bond line structure of butane. So each point will represent a carbon atom. ठीक है, each point will represent a carbon atom and accordingly we will know how many hydrogens are there. ठीक है, अगर बीच में तुम्हारा डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, if something like this is पकड़ लो 1 ब्यूटीन है, तो नेक्स्ट इसमें भी सेम ही होगा 1 2 3 4, तो 1 2 2 3 4 और 3 और 4 का बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ऐसा आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हर एक पॉइंट एक एक कार्बन समझाएगा, तो ये एक नंबर कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, 3 और 4 का बीच में क्या डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं और ये हो जाएगा लास्ट तुम्हारा, एक और 2 और देखेंगे, CH3 CH Br, ठीक है, CH2 CH3, तो इसमें देख लो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को फिर हम लोग वो जेक में अरेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन है ना, 3 4, तो पहला वाला में CH3 है, सेकेंड वाला में H है और Br है, Br लिख दिया और H लिख दिया, तीसरा में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है H2 और चौथा वाला में 3 हाइड्रोजन है। तो जब इसका क्या बोलते हैं हम लोग का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आएगा, तब तुम्हारा आएगा कुछ ऐसे 1 2 3 4, और इस वाला में ब्रोमीन तो ब्रोमीन, तो ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत बड़ा था इसमें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? डाउट है कुछ? तो सही है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ के देख लेना, 2-3 एग्जांपल्स देखना, और ये होगा तो हमको पूछ लेना, बता देगा। ठीक है, तो क्या भाई साहब, ये हो गया था तुम्हारा कंप्लीट, मतलब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, हाउ वी रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर और कंप्लीट स्ट्रक्चर, थर्ड हो गया तुम्हारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 4 हो गया तुम्हारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं तुम्हारा 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं वेज फार्मूला। ठीक है, देख लो, बिफोर दैट till now all the structures formula that I have explained you so far here, the bond line or all the dash structure, all of them are what, 2 dimensional, right?
2-dimensional. They don't give any idea of how the molecule is in 3D. Molecule मतलब असली में 3 डायमेंशन में दिखने में कैसा है वो कुछ कोई आइडिया नहीं देता है, ऊपर है ना नीचे है ना आगे है ना पीछे, मतलब कोई आइडिया नहीं है, ठीक है. So we have one way of representing the 3D structure of the molecule on a paper, 2D plane. Or how we do it? By using this wedge formula, या फिर तुम्हारा डैश वेज, सॉलिड एंड डैश फॉर्मूला, ठीक है. तो देख लो कैसा होता है. मीथेन, लेट्स टेक मीथेन, ठीक है. मीथेन का क्या है, CH4 कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंप्लीट डैश स्ट्रक्चर है तुम्हारा ऐसा, ठीक है. वन थिंग इज श्योर कि ये जो मीथेन है ये फ्लैट नहीं है, ठीक है. और ये स्ट्रक्चर जो है कुछ बताता नहीं है ये फ्लैट है या कैसा है. तो नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं तुम्हारा देख लो. वी टेक देम इन दिस वे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है. विल टेक दिस, और एक आ गया तुम्हारा ऐसे वेज पे, एक हाइड्रोजन और एक आ गया तुम्हारा इस पे बैक, ठीक है. तो इससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मैं तुमको दो और इंफॉर्मेशन देता हूं. पहला कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन जो ये बॉन्ड है, ये तुम्हारा इज ऑलवेज 109.5 डिग्री, ठीक है. बॉन्ड एंगल जो है दोनों का बीच का, ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये होगा तुम्हारा हमेशा 109.5. वो नहीं बल्कि दिस ऑल्सो, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 109. ये CH3 ये भी है तुम्हारा 109, ठीक है. ये भी हो गया तुम्हारा 109. सो बिटवीन ऑल CH3 दिस बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज 109.5 डिग्री, ठीक है. बात हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगा ये वाला. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारा दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली टेट्राहेड्रल, ठीक है. तो जो मीथेन है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहता है, और नेक्स्ट क्या, दोनों का बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री है, ठीक है. तो ये दो इंफॉर्मेशन रखो. अभी बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या समझाता है. व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर ट्राइंग टू से, ठीक है. तो से दिस स्क्रीन, हम लोग के पास ये जो स्क्रीन है, फोन का जो स्क्रीन है, ये तुम्हारा एक प्लेन पकड़ लो कि ये एक प्लेन है, और वो स्क्रीन में तुम्हारा क्या बोलता है, ये है कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो तुम्हारा क्या बोलता है स्क्रीन पे है, ये तीन, ठीक है. CH3 ये स्क्रीन है, ठीक है. और ये जो तुम्हारा क्या बोलता है, जो वो पूरा डार्क वाला जो वेज है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है. एक स्क्रीन के ऊपर है, और ये जो तुम्हारा डैश 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 है, ये तुम्हारा क्या स्क्रीन के नीचे. बात तो समझ रहे हैं. तुम्हारा फोन पकड़ लो, फोन का जो स्क्रीन है, वो फोन का स्क्रीन में तुम्हारा क्या बोलता है, C है, H है और H है, ये तीन मतलब स्क्रीन में सो रहा है, ठीक है. स्क्रीन में आराम से लेटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है तुम्हारा, ये ला, ये स्क्रीन के बाहर है, थोड़ा बोलो वो अराउंड 45 डिग्री एंगल में वो उठा हुआ है, थोड़ा इंक्लाइन होकर स्क्रीन में, ठीक है. जैसा क्या बोलते हैं वो कार का वो इसे वो रेडियो टावर निकलता है ना ऊपर जैसा उठता है थोड़ा सा, ये कार पकड़ लो तो कार का ऊपर में जैसा करके ये रेडियो टावर आता है, ऐसा करके, थोड़ा बहुत बकवास ड्राइंग है फिर भी समझ लो, ठीक है. तो ये पकड़ लो, ये स्क्रीन है, ये मतलब ये फ्लैट है, ये फ्लैट सरफेस में तुम्हारा क्या है CH और H है, ठीक है. और ऊपर में तुम्हारा क्या बोलता है एक हाइड्रोजन है, और नीचे का तरफ एक तुम्हारा दूसरा हाइड्रोजन है, बस समझ रहे. तो ये तीन जो है तुम्हारा एक प्लेन में है, जैसे पकड़ लो ये एक प्लेन बना लिया हम,
ऐसा नहीं बनाता है, थोड़ा ऐसा बनाता है। ठीक है, ये एक प्लेन बना लिया सपोज। ठीक है, ये प्लेन में तुम्हारा क्या होगा देख लो, एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम है। ठीक है, ये प्लेन में, एकदम प्लेन में सो रहा है, एक कार्बन एटम है और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम ऐसा है। ठीक है, समझे, ये फ्लैट प्लेन है। तो और दूसरा एक हाइड्रोजन जो है ये ला, ये इस तरीके से ऊपर है, एक प्लेन के ऊपर है। ठीक है, हाइड्रोजन, और एक जो है तुम्हारा प्लेन के नीचे है, कुछ इस तरीके से। तो ये कंप्लीट CH3 ये इस प्लेन में सो रहा है। ठीक है, ये प्लेन में है। ठीक है, और ये जो है वो ये अलग अकेला इस प्लेन से ऊपर उठा हुआ है, और वही सेम एंगल पे ये नीचे प्लेन का नीचे है एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसा हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। और दूसरा बात तो याद रखना ही है, हर दो बॉन्ड का बीच का तुम्हारा एंगल क्या 109.5 है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है ये तुम्हारा 109.5, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी तुम्हारा 109, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी तुम्हारा 109.5 डिग्री है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब वो समझाते हैं टेट्राहेड्रल को। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसको थोड़ा और बताना पड़ेगा, थोड़ा नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बता देगा, पर इतना सा समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तुम्हारा जो वेज डैश है, मतलब ये ऐसे स्क्रीन में पूरा ऐसा करके समझाना थोड़ा दिक्कत होता है। फिर भी अगर इसमें तुम वो घर में थोड़ा जाकर पढ़ लेना इतना सा पार्ट 2, अगर इसमें से थोड़ा समझ में नहीं आया तो हमको फिर बता देना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा समझा देगा अच्छे से, मतलब क्या बताना चाहता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल जो है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का तुमको थोड़ा आइडिया दिला, मतलब पता हो जाएगा कि कैसा होता है। इसकी ये पकड़ लो, तो ये जो है ये तुम्हारा एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन मिला के एक ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, राइट। तो और हर एक ये ट्राइंगल का वर्टेक्स पे एक ये है इस तरीके से, एक ये है, और वो पीछे से वो वर्टेक्स है, ये यहाँ पे आके ज्वाइन होता है ऐसे। तो ये हो गया, और बीच में तुम्हारा ये कार्बन एटम है, मतलब कुछ इस तरीके से। ये नीचे में तुम्हारा ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो हर एक ट्राइंगल से तुम्हारा ये इस तरीके से एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, और एक हाइड्रोजन इस तरीके से आएगा। ये दो पीछे में है। ये पीछे में है, तो वो समझ में आ रहा है कि सामने एक ट्रायंगल है और वो पीछे अंदर का तरफ वो धंसा हुआ है थोड़ा सा। तो बीचों बीच में तुम्हारा क्या रहेगा, ये कार्बन रहेगा। ठीक है, ये कार्बन के साथ हर एक वर्टेक्स पे, हर ये क्या एक वर्टेक्स है, हर एक वर्टेक्स पे तुम्हारा क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन एटम रहेगा। वो पीछे से इस तरफ रहेगा। ये जो पीछे वाला है ये तुमको डैश 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 से समझाएंगे, ये आगे वाला जो है ये तुम्हारा वेज से समझा रहा है, और ये तो प्लेन नहीं है, तो कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया तुम्हारा मतलब मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ठीक है, कैसा? तो ठीक है, ये था आज का क्लास हम लोग का। ठीक है, इसी में अगर तुमको मतलब कोई डाउट वगैरह है तो तुम हमको पूछ लेना, पूछ सकता है कुछ अगर पूछना है तो। ठीक है।